आज के लेक्चर में we will study what is the general form of central force, then motion under central force, or we will finish today's lecture with the conservation of energy under the action of a central force. So let us start. The general form of central force is represented by the inverse nth power law. Yani central force is inversely proportional to nth power of separation between two bodies. So in vector form, the central force equals a constant times 1 by r raised to power n. तो यहाँ से हम देखते हैं that force is inversely proportional to nth power of separation and r cap gives the direction. So its magnitude is f of r equals k times 1 by r raised to power n. So this is the general form of any central force. अगर ये k जो इसमें constant है, if it is less than 0, यानी this is negative, then the force will be attractive. और अगर इसमें constant का value greater than 0 है, यानी the constant is positive, then the force is repulsive. अच्छा, central force की एक important property ये है that it is conservative. कि अगर एक सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है तो वो एनर्जी भले काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में और वाइस वर्सा पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. इट डज नॉट चेंज विद टाइम, इट डज नॉट चेंज विद पोजीशन. तो that means central force is conservative. और हर किसी conservative force के लिए हम एक term define कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं potential energy function. Potential energy function, because हर किसी conservative force के खिलाफ जो काम किया जाए, ये conservative force उसको store रखता है, and the stored form of energy is called potential energy. So that means for every conservative force, there will be a corresponding potential energy function. और central force, चूंकि ये conservative है, so we can express it as a negative gradient of potential energy function. That is, the conservative force will be equal to minus times negative gradient. And gradient means change in some physical quantity with position. कि हम देखें कि किसी physical quantity में कितनी change होती है जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे. एक common example of gradient हम ले सकते हैं temperature gradient. कि हम अर्थ की सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, या हम अर्थ की सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे, तो वी आर चेंजिंग पोजीशन. तो एक जगह से दूसरी जगह किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितनी चेंज आती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, एंड दैट इज गिवन बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस dr. और यहाँ पे नेगेटिव ग्रेडियंट है, नेगेटिव का मतलब माइनस, और दिस इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो the force will be given by minus du by dr. अच्छा, यहां से हमें du के लिए क्या एक्सप्रेशन मिलेगी? We will get du is equal to, एक तो ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, so it will be f of r into dr. इसमें हम f of r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो we will get du is equal to minus k times 1 by r raised to power n into dr. So this is the expression what we get. Now let us integrate it. So we will integrate on both sides. Integration on left hand side,
integration on right hand side because k will be a constant, it will not change with distance. Left hand side mein integral and differential will go, so we will get u is equal to minus k times, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए ये जो r रेज टू पावर n डिनोमिनेटर में है उसको हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, सो इंटीग्रेशन r रेज टू पावर, इसका पावर वहां पे पॉजिटिव n है तो यहाँ पे ये नेगेटिव बनेगा। एंड यू नो वेरी वेल x रेज टू पावर जो उसका पावर है उस पावर को एक ऐड करना होता है इंटीग्रेशन के लिए और वही पावर डिवाइड भी करना होता है, सो वी विल गेट माइनस k टाइम्स r raised to power minus n plus 1 divided by minus n plus 1, and we have to add here a constant of integration, supposing that constant of integration is c. So we will get, which implies potential energy function is equal to minus k times, यहाँ पर हम ये जो माइनस साइन है इसको कॉमन आउट करेंगे, so we will get r raised to power minus n माइनस 1, तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस बनेगा 1 प्लस बनेगा, यू विल गेट द सेम थिंग। और इसी तरह हम डिनोमिनेटर में भी ये माइनस कॉमन आउट करेंगे, वी विल गेट माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 एंड देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, माइनस एंड माइनस विल गो, तो वी विल गेट एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन एज k टाइम्स इस r रेज टू पावर माइनस n माइनस 1 को नीचे ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में इसका पावर पॉजिटिव बनेगा, सो वी विल गेट n माइनस 1 into r raised to power n minus 1 and plus a constant of integration. So this is what we get expression for potential energy और इसका हम नाम रखेंगे equation I. Let us choose that potential energy becomes zero at infinity, and which is the realistic case. जब दो बॉडीज के दरमियान इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी तो ऑब्वियसली उनके दरमियान जो फोर्स होगा वो नेग्लिजिबल होगा, जीरो होगा, तो when there is no force between two objects there can be no potential energy. तो इसको हम इक्वेशन I में यूज करेंगे, तो we will put potential energy is equal to 0, so U is equal to 0 is equal to K times 1 divided by n minus 1 into R की जगह हम infinity यूज करेंगे raised to power n minus 1 plus the constant of integration C is equal to K into, now 1 by infinity is 0, so it is K into 0 plus constant of integration C is equal to 0 plus C. तो लेफ्ट हैंड साइड 0 है, C के साथ एडिशन में 0 है, तो यहां से हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 मिलता है। So then our equation I becomes, जब इसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 रखेंगे तो we will get potential energy is equal to K times 1 divided by n minus 1 into R raised to power n minus 1. So this is the general form of potential energy for a central force. We will call this equation number 1. Let us consider a few special cases. Let us choose n is equal to minus 1 और k का वैल्यू हम नेगेटिव चूज करेंगे, तो इट गिव्स अस फोर्स इज इक्वल टू k हमने नेगेटिव चूज करना है, सो इट इज माइनस k into 1 by r raised to power n, which is minus 1 into r cap. So this will become minus k into, ये r raised to power minus 1 ऊपर ले जाएंगे, it will become positive, इसका power into r cap. So this is the expression for this force. और इसी तरह जो potential energy है, that will be
माइनस के इंटू 1 by n का वैल्यू -1 हमने लेना है, सो -1, देयर इज अनदर -1 into r raised to power n का वैल्यू -1, then there is another -1 is equal to, this will become minus k into 1 divided by -1 becomes -2 into r raised to power -2. This minus and minus will go, so we will get expression for potential energy is equal to k, इसके डिवीजन में 2 है तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू के, और r रेज टू पावर -2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो r का पावर पॉजिटिव बनेगा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, and this represents the case of simple harmonic motion. This force represents elastic force or the spring force, and this potential energy represents elastic potential energy. Okay, एक और स्पेशल केस हम कंसीडर करेंगे. We will put n is equal to 2 and k का वैल्यू हम नेगेटिव ही रखेंगे. तो it will give us force is equal to k की जगह -k into 1 divided by r raised to power n की जगह 2 and r cap. तो this is the force. तो इसी तरह हम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू देखेंगे. दिस विल बी -k into 1 divided by n का वैल्यू 2 है, सो 2 - 1 into r raised to power n की जगह 2 - 1, तो दिस विल बी -k into 1 by 2 - 1 is 1 and r raised to power 2 - 1 is 1, तो r का वैल्यू पावर 1 आएगा. सो दिस इज -k into 1 by r. So this represents gravitational force. This is gravitational force. इसमें k का वैल्यू जो है वो हम लिख सकते हैं g m1 m2. तो then it will become gravitational force. इसी तरह हम यहाँ पे k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे g m1 m2. So this will be gravitational potential energy. Gravitational potential energy. इसी तरह हम एक और केस कंसीडर करेंगे. लेट अस चूज n इज इक्वल टू 2. k का वैल्यू हम बाद में देखेंगे कि पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव. तो इसमें हम n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो दिस विल बिकम k into 1 by r square r cap. और इसी तरह जो ग्रेविटेशन दिस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दैट विल बी k into 1 by 2 - 1 into r raised to power 2 - 1, तो this will be k into 1 by r. तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर करें तो उसमें k का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. अगर k का वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे देन दिस विल बी अट्रैक्ट रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर हम इसमें k का वैल्यू नेगेटिव रखें तो then the electrostatic force will be attractive. Now let us consider the motion under central force. The equation of motion for reduced mass under the action of a central force, ये expression हमने previous lecture में derive की है. Mu is the reduced mass, r double dot, it is the acceleration of the reduced mass, and f of r cap, this is the central force. तो कल शाम को ही मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बोला था कि आज के लेक्चर के लिए आप यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक फिर से रिवाइज करें कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या एक्सप्रेशन मिलती है इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स. सी ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि अगर एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट सेंट्रल फोर्स के अंडर काम करे, मूव करे,
ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया कि इफ अ बॉडी मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स द मोशन विल बी इन अ प्लेन। तो इसीलिए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स ही हम यहाँ यूज करेंगे। तो in terms of plane polar coordinates, the acceleration is given by this expression: r double dot minus r theta dot square, r cap means along radial direction, plus r theta double dot plus twice r dot theta dot into theta cap. This means along tangential direction. So we will use this in above equation. So we will get यानी r double dot acceleration के लिए हम ये expression use करेंगे। So we will get mu times r double dot minus r theta dot square r cap plus mu times r theta dot double dot plus twice r dot theta cap, and this whole thing equals f of r into r cap. ये जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम डॉट रखते हैं, दिस इज न्यूटोनियन नोटेशन, इट डिनोट्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर किसी के ऊपर दो डॉट हैं, इट मींस डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सिंस आर कैप और थीटा कैप दे आर टू इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, तो अगर इस इक्वेशन को करेक्ट होना है, इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट, तो we have to equate coefficients of r cap on both sides and they must be equal. तो लेफ्ट हैंड साइड पे r कैप का कोएफिशिएंट है म्यू टाइम्स r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे r कैप का कोएफिशिएंट है f of r. So we will equate them. So mu times r double dot minus r theta dot square should be equal to f of r. This is called the radial equation of motion. तो इसी तरह हम इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थीटा कैप ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे थीटा कैप का कोएफिशिएंट है ये म्यू टाइम्स और थीटा डबल डॉट प्लस ट्वाइस आर डॉट थीटा डॉट, लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड पे थीटा कैप का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो वी विल से इट इज कोएफिशिएंट इज जीरो। तो दैट मीन्स जब हम इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ थीटा कैप ऑन बोथ साइड्स, तो वी विल राइट म्यू टाइम्स आर थीटा डबल डॉट plus twice r dot theta dot is equal to 0. This is called the equation of motion for theta coordinate. अच्छा, यहाँ पे ये बात गौर करने लायक है कि हमें जो थीटा कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन मिली वो जीरो मिली। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है the definition of central force. By definition, central force acts along the line joining the two objects. That is, it is directed along the radius. It does not have any tangential component, so it is theta component will be zero. Well, the total mechanical energy of the reduced mass will be E is equal to, this will be equal to kinetic energy प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है 1/2 मास विच इज म्यू टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर, सो v स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ सेपरेशन ओनली और डिस्टेंस ओनली। अच्छा, वी कैन राइट दिस एज 1/2 म्यू टाइम्स वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर, बिकॉज जब हम एक वेक्टर को खुद के साथ स्क्वायर करेंगे या डॉट करेंगे, वी गेट ओनली स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट एज 1/2 म्यू टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी विद इटसेल्फ, v डॉट v
प्लस u ऑफ r। जब हम एक वेक्टर को खुद के साथ डॉट करते हैं तो हमें सिंपली क्या मिलता है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो दैट मीन्स कि इसमें हम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन पहले देखेंगे। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको हम सेल्फ डॉट करेंगे, यानी खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। तो वी विल राइट वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमने इसी के साथ करना है। सो इट इज r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप। नाउ फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट हमने देखना है कि कौन कौन सा कंपोनेंट एक जैसा है। यहाँ पे r का r कैप का कंपोनेंट है r डॉट और यहाँ पे r कैप का कंपोनेंट है r डॉट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो वी विल गेट r डॉट स्क्वायर प्लस इसी तरह हमने देखना है कि यहाँ पे थीटा कैप का कंपोनेंट क्या है, दैट इज r थीटा डॉट। यहाँ पे थीटा कैप का कंपोनेंट क्या है, दैट इज r थीटा डॉट। इनको मल्टीप्लाई करना है तो वी विल गेट r का स्क्वायर एंड थीटा डॉट का स्क्वायर। तो हियर वी हैव यूज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई द सिमिलर कंपोनेंट्स। सो v डॉट v हमें मिलता है r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। we will substitute it in the energy expression. So we have got the expression for energy 1 by 2 mu v dot v plus u of r, और वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी के लिए हमें r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर मिला है। तो इसको हम वहां पे इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे। सो वी विल गेट E इज इक्वल टू 1 by 2 म्यू टाइम्स, फिर हम ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि वहां पे दो टर्म्स हैं। तो v डॉट v की जगह हम लिखेंगे r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, एंड इसके साथ प्लस है द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो 1 by 2 म्यू से हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी विल गेट एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी एज 1 by 2 म्यू और डॉट स्क्वायर प्लस 1 by 2 म्यू और स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, एंड इसके साथ ऐड है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। सो दिस इज व्हाट वी गेट एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द रिड्यूस्ड मास इन टर्म्स ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो 1 by 2 म्यू आर डॉट स्क्वायर है, इसको हम नाम देते हैं रेडियल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज this is kinetic energy possessed by the body due to radial motion. अच्छा, उसके बाद जो ये दूसरी टर्म है 1 by 2 म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी। It is called centrifugal potential energy. Let us see what is expression for angular momentum in terms of theta dot. What is theta dot? Theta is the angular coordinate. जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो इस के साथ ऑब्जेक्ट के साथ हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं विद ओरिजिन। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो रेफरेंस लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है व्हेन द ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स और रोटेट्स। तो दैट इज द एंगुलर कोऑर्डिनेट। तो जितना वो ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा दिस थीटा विल चेंज, तो वी विल गेट द एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, थीटा डॉट।
which is omega. तो हम angular momentum को express करेंगे in terms of theta dot. तो by definition angular momentum is mass into linear velocity into radius. So mu v/r. Now velocity is related to angular velocity as v equals r into omega. Omega is the angular velocity. This is the rate of change of angular coordinate with respect to time. That is, this is theta dot. So we will use the value of velocity here. Using an above equation, we will get that angular momentum is equal to mu into v की जगह हम use करेंगे r omega और into एक r तो है ही. So we will get angular momentum is equal to mu into r square omega. Now, by definition, angular velocity is the rate of change of angular coordinate. Yani omega is d theta by dt. That is, this equals theta dot. So that means कि यहाँ पर जो ये omega है, उसकी जगह हम theta dot substitute करेंगे. So we will use in this equation, we will get L is equal to mu r square theta dot. तो यहाँ से हमें थीटा डॉट के लिए क्या एक्सप्रेशन मिलेगी? बाय द वे ये इक्वेशन भी हम काफी बार यूज करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स. तो यहाँ से हमें थीटा डॉट के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी L डिवाइडेड बाय mu r square. So this is what we get expression for theta dot. So we have got theta dot is equal to L by mu r square. तो जो centrifugal potential energy है, this will become 1 by 2 into mu r square into theta dot, बल्कि theta dot का square, इसका square. So we will get L square divided by mu का square, r square का square means r raised to power 4. So mu will cancel one power of mu here, and this is r square. This will cancel 2 powers of r here. We will get 2 powers of r there. So we will get 1 by 2 L square by mu r square. So this is another expression for the centrifugal potential energy in terms of angular momentum L. Then the total energy will be E is equal to 1 by 2 mu r dot square plus 1 by 2 mu r square theta dot square plus u of r. So this will become 1 by 2 mu r dot square will remain as such, plus जो ये दूसरी टर्म है इसको हम लिखेंगे in terms of angular momentum. So 1 by 2 L square by mu r square and plus इसके साथ है potential energy. So this is expression for the total energy in terms of angular momentum. Now here we define effective potential energy as the sum of centrifugal potential energy and the real potential energy. So then the total energy will become E is equal to 1 by 2 mu r dot square plus ये दोनों, now we have put that equal to effective potential energy, so we will write plus U effective. So we get expression for total energy as 1 by 2 mu r dot square plus effective potential energy. Because हम एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को लिखना पसंद करते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो रेडियल काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास है
तो बाकी जो कुछ एनर्जी का कंपोनेंट है उसको हम फिर इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। Now let us see the total energy remains conserved under the effect of a central force. The radial equation is mu times r double dot minus r theta dot square is equal to f of r. तो हम mu से दोनों terms को multiply करेंगे. We will get mu times r double dot minus mu r theta dot square. This equals f of r. Now since theta dot equals L by mu r square, तो theta dot का square कितना होगा? That will be square of right hand side. That means L square divided by mu square r raised to power 4. तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे. So using in above equation, we will get mu times r double dot minus mu r into theta dot square की जगह हम ये यूज करेंगे. L square divided by mu square r raised to power 4, and this whole thing equals f of r, which implies mu into r double dot is as such, then there is minus. अच्छा, mu इसका एक पावर कैंसिल करेगा डिनोमिनेटर में, एक ही पावर बचेगा, और ऊपर r का एक पावर है वो इसका एक पावर खत्म करेगा तो 3 पावर बचेंगे. We get L square divided by mu r cube. This equals f of r. तो इसको हम इक्वेशन नंबर I का नाम देंगे. सो इक्वेशन I is second order differential equation of motion in terms of r. Why it is second order? Because यहाँ पे r double dot है, which is basically d square r by dt square. Okay, so we have got equation I. Since हमारा central force conservative है, तो कंजर्वेटिव फोर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो एफ ऑफ आर उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज माइनस डी यू बाई डी आर. तो इस इक्वेशन को हम यहाँ, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ इक्वेशन आई में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो यूजिंग इन इक्वेशन आई वी विल गेट म्यू आर डबल डॉट minus L square divided by mu r cube is equal to minus du by dr. अच्छा, ये जो नेगेटिव डिफरेंट ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये हमें वहां पे प्लस साइन के साथ मिलेगा. तो वी विल गेट म्यू आर डबल डॉट माइनस L square by mu r cube plus du by dr. और राइट हैंड साइड पे कुछ बचा नहीं, so there is 0. So this is equation which we have got till now. इस इक्वेशन को हम दोनों साइड्स पे r डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे. r डॉट मीन्स कि हमने r को एक बार डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो पहली टर्म को भी हम r डॉट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी टर्म को भी हम r डॉट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो तीसरी टर्म है वहां पे मैं r डॉट से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, वहां पे मैं dr बाई dt से मल्टीप्लाई करूंगा. तो है तो ये सारी क्वांटिटी एक जैसी, लेकिन तीसरी टर्म को du बाई dr, देयर इज dr, इसलिए वहां पे हम dr बाई dt से मल्टीप्लाई करेंगे. तो वी विल गेट म्यू आर डबल डॉट, इसको भी r डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सॉरी माइनस देयर इज टर्म L स्क्वायर बाई म्यू आर क्यूब, इसको भी r डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे,
और तीसरी टर्म है डी यू बाई डी आर, इसको भी हम आर डॉट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ डी आर बाई डी टी। दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0, उसको भी आर डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीसरी टर्म में दिस डी आर एंड डी आर विल गो, तो वी आर लेफ्ट विद म्यू आर डबल डॉट into r dot minus L square by mu r cube into r dot plus तीसरी टर्म में बचेगा du by dt and this whole thing is equal to 0। इसको रखें फिलहाल ऐसे। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 सेकंड, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। और चूंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करना है, तो हमें दिखाना है कि टोटल एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें डी यू बाई डी टी आ गया, इसको भी हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको भी हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सी हाउ। Differentiation of 1 by 2 mu r dot square with respect to time, तो this will be equal to 1 by 2 और mu तो constant है into r dot square की differentiation, इसका जो पावर है वो नीचे प्रोडक्ट में आ जाएगा, into r dot का जो एक पावर है वो कम होगा, into r dot की अपनी implicit differentiation। तो 2 and 2 will go, तो you will get mu r dot, तो 2 minus 1 is 1, तो इसका पावर है 1, into r dot की एक और differentiation which is r double dot, तो this equals mu r double dot into r dot। तो ये हमें डिफरेंशिएशन मिलती है 1 by 2 mu r dot square। So we get the differentiation of 1 by 2 mu r dot square, उसकी डिफरेंशिएशन हमें मिलती है mu r double dot और सिंगल डॉट, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे। इसी तरह हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by 2 L square by mu r square with respect to time। Let us evaluate the differentiation। This equals 1 by 2 denominator में mu, they are constant, L square is also constant, under the action of central force angular momentum is constant, तो into d by dt, तो फिर क्या बचता है 1 by r square। So this will be equal to L square by 2 mu into d by dt of, इस 1 by r square को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर -2 बनेगा, इक्वल्स L square by 2 mu इनटू, अब r रेज टू पावर -2 की डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जो पावर है वो नीचे आएगा, इनटू r रेज टू पावर -2 है, इसका एक पावर और कम होगा, इनटू r की अपनी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, सो d by dt ऑफ r। तो एक तो नॉट माइनस, 2 and 2 will get cancelled, तो we will get L square by mu into r raised to power -3 into r की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज r डॉट, और यहाँ पे माइनस साइन भी है, सो माइनस साइन आगे रखेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस L स्क्वायर बाई म्यू, ये जो r रेज टू पावर -3 है इसको नीचे ले जाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव बनेगा, एंड हियर इज r डॉट। So this is the differentiation of the bracketed term। So this is differentiation of, this is d by dt of 1 by 2
L square by mu R square. So we have got equation number 2, equation number 3, and equation number 4. So what we will do that we will use equation number 3 and equation number 4 into this equation number 2. What I mean to say कि जो equation number 2 में पहली term है mu और double dot और single dot, तो इसका value हम equation 3rd से लाएंगे. That means d by dt of 1 by 2 mu r dot squared. Then फिर जो दूसरी टर्म है माइनस एल स्क्वायर बाई म्यू और क्यूब और डॉट, तो इसका वैल्यू हम इक्वेशन 4th से लाएंगे, विच इज प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1 by 2 एल स्क्वायर बाई म्यू और स्क्वायर. और तीसरी टर्म विच इज डी यू बाई डी टी, we will keep that as such, and this whole thing is equal to 0. Next step में हर जगह d by dt है, तो we will take it common out. So d by dt of bracket, तो पहली टर्म है 1 by 2 mu और डॉट स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म में 1 by 2 l स्क्वायर बाई म्यू और स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म में पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन u, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0. जरा ब्रैकेटेड टर्म पे नजर डालें. द ब्रैकेटेड टर्म इज द टोटल एनर्जी E of the reduced mass. So that means we can write that this is d by dt of E, the total energy, and that equals 0. और जिसकी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम 0 होती है, इट मीन्स के विद टाइम its value does not change. So that means this energy, its value does not change with time, so it remains constant. So it means the total energy of a system which is under the action of a central force, its total energy remains constant or conserved. Hence proved.